again Ye Jindagi. Today we will do how we are telling always cute stories. Then come on, see our beautiful story. Brinda, what a presentation. So Brinda, but before we start anything, I would like to ask you something. Can I? Yes. Okay. What do you mean by ascending order? Ascending. Do you know what? Ascending order means Hmm. small to big. Very good. And descending order means big to small. Okay. Example of ascending order. 5 numbers in ascending order. 5 numbers means Any 5 numbers in ascending order. 1. 1, 2, 3, 4, 5. This is ascending order, like how we are, stepping on ladder or. And descending order is 5. Descending means down, going down from roof to down. 10 to it will go. Sorry. Ascending order will. Ascending order means from the first step on when you are going to your roof. First step, second step, third, fourth, fifth, and then you reach your top, roof floor. Then from there, if you want to come down, 10th stair, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Go. Oh, so down to top to down is descending, and down to top is ascending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the correct way. That is. And the wrong way is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Not wrong way. It's like descending order. Okay. So today we will continue with a small story. Very small story. Let's. But I think you will not be. Not this small story. In starting only it will finish. Not that. No, not that small. But it will be a small story. And today's story we are going to read it from Sudha Murthy's book. Okay. The daughter from a wishing tree. So we will start the story and it goes like this. Okay. The frog who forgot happiness. Frog means? एक मैडम खुशियाँ को ही भूल गई. Oh my God, outstanding. The frog who forgot happiness. A long time ago, बहुत साल पहले there lived a group of sages. वहाँ पे एक बहुत समय पहले. मैं बताती हूँ. A long time ago, there lived a group of sages who went out every morning. Sage means sadhu. साधु. बहुत समय पहले साधु रहते थे. Who went out. कितने सारे साधु हैं दुनिया में. एक बार तो कोई था तो उनने यज्ञ करने का गए तो फिर साधु जा रहे थे वो. तो फिर जब वो यज्ञ करे तो उनको लगा ये हम साधु है तो हमारी तो इज्जत करेगा. पर वो तो ध्यान में थे विष्णु के. वो ध्यान ही नहीं करे. ध्यान में थे. और क्या हुआ कि साधु ने देखो तुमने मेरा अपराध करा. मैं तुमको शराप देता हूँ कि तुम एक हाथी बन जाओगे. वो हाथी बन गया. ठीक. अब जब हाथी बन गया तब तो वो अब राजा था हाथी का. अब एक बार वो भी पानी पीने गया नदी में और बीच में वो था और सब हाथी उनके पीछे थे. फिर एक क्रोकोडाइल आता है और उसका पैर ही पकड़ लेता है. वो उठने की कोशिश करे पर उठ ना पाए. एक लोटस उठाया और भगवान कृष्ण के पास पहुंचाने की कोशिश करा. तब भगवान कृष्ण उसका उससे ही उसका गला काट दिया. स्टोरी खत्म. Can I continue? Yeah. Okay. ठीक है. The frog who forgot happiness. एक ऐसा मेढक जिसको अपनी हैप्पीनेस या खुशहाली ही भूल गई. ठीक है. A long time ago, there lived a group of sages who went out every morning for their prayers and came back to their dwellings in the evening. बहुत समय पहले की बात है. कुछ साधु लोग थे जो रोज सुबह अपने प्रेयर के लिए घर से बाहर निकल जाते थे और शाम को घर वापस आते थे. ठीक है.
दे लेड अ पायस एंड सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते थे. ईटिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई वेल, मतलब फल खा लेते थे और जो आसपास में कुएं मिल जाते थे वहीं से पानी पीते थे. एकदम सिंपल लाइफ. अ फ्रॉग हु लिव्ड इन द वेल ऑब्जर्व देयर वे ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो टर्न्ड पायस. और एक कुएं में एक मेढक रहता था जो साधु लोगों की इस तरह की जिंदगी को देखा और वो बहुत प्रभावित हुआ और वो मेढक भी वैसा ही हो गया जैसे साधु लोग थे, एकदम पवित्र आत्मा वाला. ठीक है. वन डे अ फ्रॉग सॉ अ पॉइजनस स्नेक एंटरिंग द वेल व्हाइल द सेजेस हैड गॉन फॉर देयर प्रेयर्स. एक दिन मेढक ने देखा कि एक जहरीला सांप कुएं के अंदर घुस गया. हाँ, किंग कोबरा जैसे स्नेक. ठीक है. द फ्रॉग न्यू दैट इफ द सेजेस ड्रैंक दिस वाटर दे वुड डाई. और फ्रॉग को पता चल गया कि अगर साधु लोग ये वाला पानी पियेंगे तो मर जाएंगे. सो ही वेटेड इम्पेशेंटली नियर द वेल टिल द सेजेस रिटर्न. इसलिए वो क्या किया, इंतजार करता रहा कुएं के पास ही जब तक साधु लोग वापस ना आए. When they came near, the frog jumped into the well to warn them about the poisonous water. और जब साधु लोग आए तो मेढक क्या किया कि इंतजार कर रहा था और उनको देख के कुएं में छलांग लगा दिया. The sages saw the sudden movement of frog and peeped into the well. तो साधु लोग देखे कि अचानक से मेढक क्यों कुएं के अंदर जाता है और वो झांके. पीप मतलब होता है झांकना, PEEP. ठीक है. टू देयर एस्टोनिशमेंट द फ्रॉग वॉज डेड. और वो लोग सरप्राइज हो गए, चौंक गए ये देख के कि मेढक मर गया. When the sages fished the frog from the well, they noticed the color of the frog's body had changed to bluish gray. और जब साधु लोगों ने उस मेढक को कुएं से बाहर निकाला तो देखा उसका शरीर थोड़ा नीला पड़ गया है. ठीक है. That's when the sages realized that the water had been poisoned, and through their yogic powers they discovered that the frog had given his life to save all of theirs. तो मतलब अपने जो वो लोग तपस्या करते थे उससे पता किए कि ये कुएं का पानी जो है वो जहरीला हो गया था और ये मेढक जो है हम लोग को बचाने के लिए ताकि हम लोग न पी ले, ये कूद के अपनी जान दे दिया. ठीक है. तो उनके पास तो पावर भी है ना. पावर भी है. तो वो सांप को जैसे हटा सकते हैं. बट दे वर नॉट अवेयर. मतलब वो तो पावर तभी यूज करेंगे जब अवेयर हो जाएंगे ना. जैसे अवेयर हो गए कि मेढक मर गया तब तो उन्होंने अपने योगिक पावर से आंख बंद करके मेडिटेट करके ध्यान किया तो पता चल गया कि उसमें पॉइजनस मतलब स्नेक था, उसने पानी को खराब किया था. लेकिन अचानक तो नहीं पता चल गया कि ये मेढक क्यों कूदने वाला है. दे वर नॉट अवेयर, राइट. तो अब क्या होता है, टुगेदर दे रिकॉग्नाइज द फ्रॉग सैक्रिफाइस. सॉरी, ये बोलना नहीं चाह रही थी. अगर वो मर गया तो उनके पास पावर से उसको जिंदा भी तो यस. लेट्स सी हाउ द स्टोरी गोज. अभी थोड़ा वेट करिए आप. टुगेदर दे रिकॉग्नाइज द फ्रॉग सैक्रिफाइस एंड ब्लेस्ड हिम. अ सिंपल क्रिएचर लाइक यू सेव्ड अस फ्रॉम सर्टेन डेथ. और उनको लगा कि ओहो ये छोटा सा एक मतलब क्रिएचर है, एक जीव है जिसने हमारी ज़िंदगी को बचाया. ओ डियर फ्रॉग, वी विल रिवाइव यू सो दैट यू कैन आस्क अस फॉर अ बून. बोला कि हम आपको ऐसे जंतर मंतर करके ऐसे आपको करके जादू हम आपको फिर से जिंदा करेंगे ताकि आप कुछ आपके मन में ख्वाहिश हो, कोई इच्छा हो तो आप मांग सको. ठीक है. When the frog came alive, he said in a human voice. जब वो मेढक जागा, जिंदा हुआ तो उसने इंसान की आवाज़ में कैसे कर बोल होता था पहले. लाइक देयर वॉज अ टाइम जब ये सारे पावर्स वर्क करते थे. आई वॉन्ट टू बी अ ब्यूटिफुल लाइक पार्वती एंड मैरी समवन हु इज एक्सट्रीमली लर्न एंड इज एन एम्परर. बोला कि वो मेढक बोला कि मैं ना पार्वती के जैसे खूबसूरत होना चाहती हूँ और किसी राजा से शादी करके उसके साथ रहना चाहती हूँ जो किसी भी साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक हो, राजा हो, एम्परर हो. ठीक है. The sages smiled and said, may you take birth as a very beautiful and pious woman whose name will always be associated with virtues and devotion to your husband. तो साधु लोगों ने रहता कि उसका नाम कोयल होता है. तो साधु लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि जो तुम्हारी इच्छा, तुम ऐसे ही घर में माने तुम एक सुंदर सी लड़की के जैसे जन्म लोगी और तुम्हारी शादी जो है तो एक राजा से होगी. ठीक है. और अपने पति के प्रति तुम बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहोगी. डिवोटेड मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगी और उसकी बातों को मानोगी, उसको मानोगी. इस तरीके के तुम्हारे भाव होंगे. पायस लेडी हो तुम. ठीक है. यू विल ग्रो अप टू मैरी अ ग्रेट एंड नॉलेजेबल किंग. और तुम्हारी शादी एक ऐसे राजा से होगी जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा. ठीक.
Thus the frog was born in his next life as मंदोदरी। अब दूसरे जन्म में वही फ्रॉग जो था वो मंदोदरी बना। डॉटर ऑफ मायासुरा, मायासुर का की बेटी। द आर्किटेक्ट ऑफ द असुरास एंड द सेलेस्टियल डांसर हेमा। अब ये इनका नाम मंदोदरी के जैसे इनका नेक्स्ट जन्म में बर्थ हुआ उनका। मायासुरा न्यू ऑफ हिज डॉटर्स प्रीवियस बर्थ विच इज़ वाई ही नेम्ड हर मंदोदरी। और जो मायासुर थे उनको ये पता था कि पिछले जन्म में मेरी बेटी जो है वो एक मेढक थी, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रख दिया, मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब क्या होता है, मंडूक। मंडूक होता है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉग, मेढक। फ्रॉग का मतलब संस्कृत में मंडूक बोलते हैं। As time progressed, Mandodari grew up to be an exquisite and pious woman. जैसे I like Mandodari. Okay. So जैसे समय बीतता गया मंदोदरी धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो बहुत ही एक पवित्र महिला मतलब बनी, एक औरत। She eventually married रावण, और उसकी शादी किससे हुई मंदोदरी की, रावण से। The greatest warrior of the time and a highly learned man, उस समय का सबसे योद्धा। रावण को तो मार दिए थे, तो मंदोदरी की पत्नी तो नहीं जिंदा रह पाए अच्छे से बहुत दिन तक, क्योंकि राम युद्ध में मार दिए थे, क्योंकि उनकी सीता को ही ले लिया रावण। आपको पता है सारी स्टोरी? और रावण रहता कहाँ था, उसकी जगह का नाम क्या था? लंका। ओह माय गॉड, गुड। तो मंदोदरी और सीता के बच्चे का नाम था लव कुश। ओह माय गॉड, ऑसम। मंदोदरी however forgot to ask the sages for happiness, लेकिन मंदोदरी ने ये तो कहा मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊं, मेरा एक राजा से जन्म वो मैरिज हो जाए, लेकिन कभी उसने ये नहीं बोला कि मुझे मेरी जो ज़िंदगी रहे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, खुश रहे। इसका उसने कभी वरदान ही नहीं मांगा था। एंड नेवर एक्सपीरियंस ट्रू जॉय हर इन हर लाइफ, और इसी तरीके से उसके जीवन में जो थे तो हमेशा ही उतार चढ़ाव बने।